adi bane takam agam pe press paternity ngoluk hilo ke press conference tomna takam noluk keralo ngo obugga he ngok dunahi tanam taggu be former adisu person be magyar lego former adisu speaker the last 2022 the loga presiding officer yagrung election adisu he lambu ke dunahi tapur taga be former adisu speaker federal speaker like akon hi dunahi tapung mibang be former adisu person ngo former adisu general secretary hilo ke adi bana keralo media keralo ngoluk media angga lagang mo anyang ako nolum lubia adi bana ke banga adi bana dolunga adi isun nolu ngolum angu pe mima beka ngolu he kanam takam he hilo adisu veteran em represent na melokondo ka adisu lok yena ke dengan represent na ngolu veteran side lo ngolu adu ngolu kholok hilo ka abam hinam de ngolu bylaws lega pe bylaws me violation inam regolo ngolu adu lega he ke pe yeto nam delo adisu giding complaint minsila bulu pection ka bo lekale ila ito deme social media lo viral do deme ngolu 24 September delo ma ate campo mangam ngolu collectively lubo gela collective views em langela ngol abk em letter patto ki deke adisu giding idung nolu hem lega hem ka bolangka ai campo pe bolangka ngolu kom talla dugdum adisu itona de inam October 1 tarik delo adi bane ke bange bulu extended meeting lo ngolum kom tomala ngolu telo ke balo du toka complaint na ke dinga kom ato kangol senior ke dinga kom ato adi bane ke bange kom ato delo kana me arope hupak ke yebong tuna adisu bulu tenure expire kai article 14 no lumilo buluk tenure expire kai 28 March 2025 delo buluk tenure ha pe 19 March 2022 delo yagrungalo election ito 28 March 2022 delo oath and affirmation bulu oath taking ito dak irong me 3 years I complete dum 28 March 2025 gikana delo 3 years I complete alangela hilo bulu hupak hilo kalo lumilo 7 months na pe bulu adisu tenure me even bom dum the article 14 no kada lok ako kuda article 14 article adisu bylaws article 14 clause 2 sub clause a lo hake peludum any self promulgated extension isila agia extension ihila il 3 years tenure kotom rongame il email ote adisu de nalen voidum then automatically abk telok adisu bylaws deme century dum yeme hupak adisu emla lula adisu hupak kai kumang yeme ngolu he adi bana ka bangam hilo ka ngolu konno ka ngolu soi tarik delo be presene ngolu malinna me iname adisu election me lagan peibo languka adi bana ka bange legade adi bana ke bange kera pe kom dekana instance ka tuki adisu adilo de bylaws defect ila adisu adilo de hagana problem ko kala tenure me yeben yebo la yenne delo de ke pection ko kala yeme delo adi bana ke bange ala adisu laganga me ijun botu inam adi bana ke bange me ngoluk appeal nam de hakape 2008 delo adi students federation ko lang all adi students union ko rungong conference lo irong me pection ko kata deme 2008 delo ngopok conference lo adi bana ke bange dem pection anmi deme dissolve baila adi su hupak ebong hupak adi su munam heme bul ilen botoku adi students aralo organization anmi kamaye pection kamaye enna delo 2009 delo adi bana ke bange pasika tholo conference ibotoko ifala 2011 delo yebom duna adisu executive hupak ka hake pakpa adisu tenure me yebom kai ilai do deme delo kuda adi bana ke bange interference ilangkula buluk aralo bulu kai telo adisu election me iboto delok bes bom dola ngolu adi bana ke bange ngolu ludum
hupak nolu adi su election eme nolu ibolang pa ipala if delo adi bana ke bang dem nolu ibola mamilo ngolu he veteran ki dinge ngolu ready du ngolu iboiku ngolu adi su election eme ngolu iboiku kaila la ngolu hemnolu ngokera pe kom lebito ngolu political dengan ate isu lo ngolu mema toka ngolu pehsan bin he bailo se hi bailo se kama imilo ngo obuk ga general secretary adi su imai hi tanam tagu persen imai hi tapung ibang imai ya hupa kaibam nakidi dekom adi su ilimai holo ingko ko di adbotuna adi su bailo solo dem ngolu respect pe lagi hi hupa bulu ngolu kanam motekom abuse bomdum bulu hime tenure me boje pe yebo bomdum agem adisu luhila iname him respect dola adisu beten kiding ngolu adisu bailo sam basai kunam laga pa ngolu page ready dum adi bana ke banganolu ati ko kamilo ila manam ko lula manam ko kal ete ngolu ngolu ready dum ngolu adi student union election me ngolu ai kam pape iboiku holo bailo sologe base bom dala mo agam holo durian no linkena ko kamilo abe dehu inke dehu ka dek adi tatken mana dek eke kidi laga pakom dem buluk aying version me ngok angonge magelo Thank you so much. Thank you my dear friend. आज हम लोग आदिशु वेटरन जो हम लोग आया है regarding the violation of the Adishu bylaws by the present incumbent headed by Mr. Jirbo Jago as a president and Taun Boli as a general secretary. तो ये कारण इस ऐसा ये है कि आपका देखिए आदिशु बाइलॉज आर्टिकल 14 क्लोज 2 सब क्लोज ए इसमें क्लियरली लिखा है कि 3 years टर्म खत्म होने का बाद अपने आप खुद वो लोग एक्सटेंशन करने से भी वो नल एंड वॉइड होगा। एक्सटेंशन कर सकता है ओनली नेचुरल कैलेमिटीज एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, वो समय में एक्सटेंशन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि एक्सटेंशन होना है, तो उसी कारण हम लोग आया है। और हम थोड़ा ये करेगा फास्ट जो हम लोग का जो समय में जो हुआ था उसको भी थोड़ा बताएगा। इन 2008 उसमें आदि स्टूडेंट फेडरेशन एंड ऑल आदि स्टूडेंट यूनियन एक फ्रैक्शन हुआ था। तो अंडर दैट आदि बाने कबांग एट ngopok कॉन्फ्रेंस उसमें दोनों फ्रैक्शन को डिसॉल्व करके आदि बाने कबांग ने चार्ज को लेके इलेक्शन कंडक्ट कराया। हमारा प्रेजेंट जो टाउन क्लब पासीघाट में करा दिया। जितना भी जो इलेक्शन कमेटी था वो सब हमारे आदि बाने का मेंबर ही था। मुझे याद है हमारा इंजीनियर गयोन टाइम प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आदि बाने कबांग, ही वाज आल्सो देयर। एंड देन हमारा ताबुंग इरिंग द वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आदि बाने कबांग, उन लोगों के अंदर 2009 में फर्स्ट टाइम आदिशु का इलेक्शन कंडक्ट करके अच्छा से हो गया। तो फिर हमारे 2011 में आज का जैसा ही प्रेजेंट इनकम्बेंट ने सही समय पर जब इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराया था, तो एक हमारा दोस्त था एडवोकेट, अभी एडवोकेट है दुगोत टेक सिंह, ही इज बिलोंग फ्रॉम इंक्यों अप्रसियन। उन्होंने आदि बाने को एक कंप्लेंट लेटर लिखा और आदि बाने ने हमारा जो अभी चीफ पेट्रोन चीफ एडवाइजर है इंजीनियर गतोम बोरांग, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और अभी प्रेजेंट जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है गयोन ताइंग को रिटर्निंग ऑफिसर बना के, और उस समय मैं भी मेंबर था। हमने काइंग कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन को आदिशु का इलेक्शन को कंडक्ट कराया था। और मैं बताता हूँ कि जितना भी जब भी आदिशु का जो प्रॉब्लम आता है हम लोग शामिल करना ही पड़ता है। मैंने यिंक्योंग काइंग कॉन्फ्रेंस एंड लास्टली रिसेंटली याग्रोंग कॉन्फ्रेंस में भी मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। तो आर्टिकल 14 का मुताबिक बोलने से हमारा जो प्रेजेंट इनकम्बेंट जो है वो लोग का पावर सब खत्म है एज पर द बायलॉज। तो
इसमें आपका आप लोग को एक कॉपी दिया जाएगा। हम लोगों ने प्रेसिडेंट अदीबाने को 24 सितंबर को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था, तो उसके कारण हम लोगों को 1 तारीख अक्टूबर को हॉर्टिकल्चर ऑडिटोरियम में एक मीटिंग कराया था। तो उसमें भी हम लोगों ने क्लियर कट सीवी जितना भी हमारा बुजुर्ग सीवी का आपका ये अदीबाने का जो मेंबर है उन लोग को मैंने क्लियरली बताया था कि इलेक्शन जो है अभी कंडक्ट कराने का समय पार हो गया, पार हो के अनदर 6 मंथ हो चुका है, अभी 7 मंथ्स होने जा रहा है। तो अभी तक हमारा अदीबाने का इंटरफेयर नहीं किया है, तो उसी के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लिखा। फिर उसका 1 तारीख अक्टूबर का मीटिंग होने का बाद भी अभी कितना दिन हो गया कि अदीबाने अभी तक टेकअप नहीं कर रहा है। इसके वजह से आज कल हम लोगों ने फिर एक रिप्रेजेंटेशन लिखा। इसमें क्लियर कट लिख दिया हम लोगों ने कि विदिन 6 डेज के अंदर में अदीबाने केबांग इंटरिम कमेटी फॉर्म करके इलेक्शन कमेटी को फॉर्म करा के अगर इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराएगा तो हम लोग वेटरन जो है इंटरफेयर करेगा, देन विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द अदीशु। तो वही है। तो एक गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ कि प्रेजेंट इनकम्बेंट अदीशु जो प्रेजेंट इनकम्बेंट है कि कोर्ट केस के बारे में बता रहा है। तो 1 तारीख अक्टूबर हॉर्टिकल्चर मीटिंग में भी मैंने क्लियर कट बता दिया था कि उसमें स्टे ऑर्डर कुछ भी नहीं है। तदाम तालम एक एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट, उसने एक टाइटल सूट डाला था सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया है कि जब मैंने कोर्ट ऑर्डर को पढ़ा तो ओनली आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द अदीशु वो लोग 6-7 महीने का बाद आदि बेल का जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज अदीशु स्टूडेंट उसके लिए एक इलेक्शन कराने के लिए शुरू कर दिया था। तो वो इलेक्शन को सिर्फ कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया था। वो लोग का जो प्रेजेंट इनकम्बेंट का जो अदीशु एग्जीक्यूटिव मेंबर का फुल एंड फंक्शन के लिए कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिए। तो इस चंद शब्दों के साथ मैं अपना प्रेस ब्रीफिंग समाप्त करता हूँ और कुछ क्वेश्चन जो भी हो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि अभी बहुत सारा रिवर्स भी चल रहा है और ये आप लोग अभी जो जैसे आपने कहा 7 मंथ्स रनिंग हो रहा है एक्स्ट्रा ना, जो अदीशु का इलेक्शन है ऑलरेडी टाइम को पार करते हुए। तो क्वेश्चन ये रेस होता है कि जब 2 अप्रैल को अदीशु की तरफ से पासीघाट प्रेस क्लब में वो प्रेस ब्रीफिंग दिया था ये जो ईयर एक्सटेंशन के बारे में, तब आप लोग के जो सीनियर टीम की तरफ से क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा जानना चाहिए क्योंकि लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ओके ठीक है। ये देखिए पहले भी हम बता चुका है ना कि ये जो जानकारियाँ है जो एक्सटेंशन का, तो तब हम लोग पता चला जब इन लोगों का बीच में 2 फैक्शन का बीच में 2 गोत के बीच में कंप्लेन काउंटर एलिगेशन होने के बाद में हम लोग पता चला। तो मेरा दायित्व ये बनता है कि बीइंग फॉर्मर अदीशु लीडर्स, हमारा दायित्व ये बनता है कि अदीशु में अगर कुछ ऐसे बीच में फैक्शन अगर हो जाता है तो हम उसको यूनिफाइड करने का कोशिश करता है। मैं ऐसा चाहता हूँ और हम सब ये चाहता है कि अदीशु स्मूथ से चले। तब जाके पता चलता है कि दोनों में कुछ टकराव है, एक टेन्यूर को लेके, एक जो है एक्सटेंशन को लेके। तब हम लोग को तब जाके हमने पहले भी बोला कि 24 सितंबर में हमने एक अर्जी दी है अदीबाने केबांग को, ये कह कि अदी स्टूडेंट्स यूनियन का भीतर कुछ फैक्शन हो रहा है, अब लोग ये चीज़ को अब लोग सुलझाए, अब लोग दोनों जो गोत है जो ग्रुप है इन लोग अब लोग सुलझाए, फैक्शन होने ना दे। तब जाके अदीबाने केबांग एक एक्सटेंशन इन लोग का सीईबी एक्सटेंडेड मीटिंग में वो मुद्दा को उठाता है और हम सबको भी बुला लेता है। तब जाके हम लोग ये पता चलता है कि जो भी जो एक्सटेंशन है ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू द अदीशु बायलॉज। और इवन इफ कोर्ट केस भी होना कुछ भी हो, ये हमारा जो बायलॉज है, ये जो
बाइलॉस जो लिखित बाइलॉस है ये हमको परमिट ये नहीं देता है कि एक दिन भी अभी स्टूडेंट्स यूनियन का टेन्योर को आगे बढ़ाए। तो अभी जो भी हम लोग बोल रहा है ये आदिशु ये बाइलॉस का मुताबिक से आदिशु का मतलब इन शॉर्ट हमको ये रिस्पेक्ट करना है, आदिशु बाइलॉस को हमको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये आदिशु बाइलॉस ने हमें पहचान दिए, हमें नाम दिए, बस इतना ही है। और जो अब जो बोला है वो हम शायद अब लोग क्लियर हो गया होगा कि जो इन लोग का एक्सटेंशन से ये मीडिया में आया दैट उसको हम लोग को कुछ ये जानकारी मतलब कोई एवर नहीं था कि इन लोग का बीच में से काउंटर एलिगेशन होने के बाद में हमको ये ध्यान में है कि ना कहीं यहाँ में कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू। लगभग सर आपसे भी ये जानना चाहिए कि जैसे आपने कहा 2008 में भी ऐसे हुआ, उसको भी अभी किया आपने सोल्व किया, तो ये हमारा इशू में ही ऐसे क्यों होता है, ये थोड़ा जानना चाहिए क्या रीजन होता है कि ऐसे हमेशा एक्शन निकालना ये कंटिन्यूसली होते रहता है। वो तो मैं बिल्कुल परफेक्ट जगह तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स का वो है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वाला जो इनकम्बेंट जो है किस कारण से होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा है वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। क्योंकि मेरा ख्याल से मेरा जो दोस्त ओबू गाँव ने बताया कि अब देखिए सेक्शन आर्टिकल 14 में क्लियर कर लिखा है, एनी सेल्फ प्रोमोगेटेड एक्सटेंशन ऑफ टर्म बियॉन्ड 3 years प्रोवाइडेड इन क्लोज 1 ऑफ द दिस आर्टिकल और एनीथिंग done during such self extension from term shall automatically stand null and void. Besides attracting strict social censure of the Adishu and Adibani. And then सब क्लोज बी में आप क्लियर कर लिखा है, आप देखिए इलेक्शन टू द Adishu shall be conducted before or after expiry of the normal term of peace, वो 3 years है, except on the ground of an unprecedented natural calamities, disaster or similar extremely unavoidable situation beyond human control as may be collectively experienced or known to the general public. तो आपने बोला था कि एक्सप्रेस ब्रीफिंग किया था, उसमें वो लोग ने एक्सटेंशन का बात किया, तो मैंने भी देखा जो जितना भी वो लोग ग्राउंड बताया है वो बिल्कुल ग्राउंड वैलिड नहीं है एज पर द सबसेक्शन सब क्लोज बी ऑफ सब क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 14 उसका मुताबिक बोलने से वो लोग का जो एक्सटेंशन था वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो जो है सेल्फ प्रोमोगेटेड में आता है और कुछ भी जो ग्राउंड जो है वैलिड नहीं है। सर लास्टली ये भी आपसे क्लियर जानना चाहेंगे कि जब जीरो जामो अंडर द लीडरशिप ऑफ जीरो जामो की तरफ से जब दाम का बारे में ही उन्होंने कदम उठाया, जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड था उनको लेकर कदम उठाया, तब ही उसका जो टेन्यूर है उसको गिराने की कोशिश किया जाए। ये एक कंफ्यूजन होने लायक सिचुएशन है। अभी हम लोग जो आज बोल रहे हैं आपको अब पहले बता चुका, ये बाइलॉस का हम लोग बाइलॉस को लेके ये रही इशू का बात, जो आदिशु ने प्रेजेंट आदिशु ने जो इशू उठाया, जो भी मुद्दा उठाया, उससे हम लोग को कोई मतलब वो नहीं लेना देना है नहीं, और वो इशू हम लोग के लिए रिलेटेबल नहीं है। ये इशू में आदिशु बाइलॉस ब्रेक डाउन होना और इन लोग कुछ इशू उठाना ये एकदम बिल्कुल अलग अलग ये है मुद्दा है। बहुत लोग का ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, शायद कल को सोशल मीडिया में भी ट्रोल करेगा कि इसका वजह से ये है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। किसी चीज़ को लेके आप उस बहाना से आप चीज़ को आप वो क्या बोलता है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। द फैक्ट रिमेंस दैट इन लोग का जो टेन्योर है वो 28 मार्च 2025 में एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद में इन लोग कुछ भी कदम उठाया होगा दैट विल स्टैंड नल एंड वॉइड। और रही जो डैम का बात है, रही जो एंटी डैम प्रो डैम का बात है, इस विषय में हम वेटरन को कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू वेरी मच।